હેટલ દીદીના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. આજના ત્રીજા દિવસના યોગા અભ્યાસમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અરુણાબેન મહેન્દ્રભાઈ દેસાઈ અને મહેન્દ્રભાઈ નાનુભાઈ દેસાઈની સ્મૃતિમાં એમના પુત્ર સમીરભાઈ અને વિશાલભાઈ તરફથી સંતવાણી ચેનલ તરફથી સીધા પ્રસારણનો લાભ લઈ રહેલા સૌ સાધકગણોનું તેમજ અન્ય સાધકગણોનું તેજસ્વીની સંસ્કૃતિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ વલસાડ વાસોરણા દ્વારા હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. લાગણીના અવસરે વંદન કરું છું. શબ્દ કાગળ પર ઘસી ચંદન કરું છું. બે ગઝલ બે ગીતના શબ્દો ચઢાવીને માતૃભાષાને વંદન કરું છું. શિયાળાની ફૂલ ગુલાબી ઠંડીમાં આપણું જે રીતે હૂંફ આપે છે એ રીતે વાતાવરણને આપણું કરીને આપ સૌનું લીલાછમ ભાષામાં લીલુંછમ સ્વાગત કરું છું. તો આપ સૌની ઉપસ્થિતિ ચેનલના માધ્યમથી જે થઈ રહી છે એ બદલ આપ સૌનું સ્વાગત છે. અને જે લોકો ચેનલ પર નિહાળી રહ્યા છે, સાથે લાભ લઈ રહ્યા છે, એ સૌ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરે અને સાથે લાઈક કરે એવી અમે અપેક્ષા પણ રાખીએ છીએ. આજના આ યોગ શિબિરની આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રમાણે દીપ પ્રાગટ્યથી આપણે અહીં શરૂઆત કરીશું. આજે આપણા વચ્ચે સુરતથી બે યોગી બાળકો આવ્યા છે, જે આમ તો બાળકો જ કહેવાય, કારણ કે આપણાથી ઉંમરમાં કદાચ અડધા હશે, અડધાથી પણ ઓછા હશે. તો રિકેશ ધાનાણી અને જૈનિશભાઈ કુંભાણી, એમને વિનંતી કરું કે દીપ પ્રાગટ્યમાંથી આગળ આવે. પરસોત્તમભાઈ લગભગ હજી હાજર નથી થયા. જયાબેનને લઈ લઈએ. મુકેશભાઈ, જનકભાઈ, કિંજલબેન હાજર હોય તો ઝડપથી આગળ આવે અને આપણે દીપ પ્રાગટ્યની વિધિ પૂર્ણ કરીશું. આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રમાણે દીપ પ્રાગટ્ય કે જેના દ્વારા આપણા જીવનમાં પ્રકાશ ફેલાઈ રહ્યો છે. તાળીઓથી વધાવીશ છે. આપણે એક સંસ્કૃતિ છે, સંસ્કૃતિનું પણ આપણે જતન કરવાનું છે. પ્રભાતના બ્રહ્મ મુહૂર્તની વેલામાં યોગા અભ્યાસ દ્વારા આપણે આપણા શરીરને સ્વસ્થ, નિરોગી, તંદુરસ્ત રાખવા માટે ઘણા પ્રયત્નો કરીએ છીએ. આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિમાં નારીને ખૂબ મહત્ત્વ આપ્યું છે. નારી શબ્દ બોલતા કે સાંભળતા ખૂબ જ મહાન લાગે છે.
નારી શબ્દ યુગ યુગથી ચાલ્યો આવ્યો છે. આદિકાળમાં પણ સ્ત્રીને ખૂબ જ મહાન માનવામાં આવતી. મહાન કાર્યોએ સ્ત્રીઓને હંમેશા પુરુષની સમાન કક્ષા આપી છે. નારી ચારિત્ર્યવાન, સેવાભાવ, સ્નેહ, સંતોષ, શક્તિ આ બધા જ ગુણોથી સંપન્ન છે. પૂજ્ય દીદી કે જેને આપણે ઘણા વર્ષોથી નિહાળીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, એમના રસ્તા પર આપણે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો એવા પૂજ્ય હેતલ દીદીને ફરી એકવાર ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. અને આજના આ યોગ અભ્યાસનો આપણે શરૂઆત કરીશું. તો આ મંચ હું પૂજ્ય દીદીને સમર્પિત કરું છું અને યોગા અભ્યાસની આપણે શરૂઆત કરીશું. શિવોહમ શિવોહમ શિવોહમ. ब्रह्म मुहूर्त में दंडकारण्य में और संत वाणी चैनल के माध्यम से घर बैठे हुए सभी लोग जो यहाँ से दंडकारण्य से जो क्रियात्मक और मानसिक योग हो रहे हैं, ध्यानात्मक योग हो रहे हैं, जो देख रहे हैं और कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं उसे वंदन और साथ में कर भी रहे हैं उसे अभिनंदन करते हुए जीवन की मान्यताएं बदलेंगे, वही मान्यता हमारा जीवन बदल देंगी. तो आइए जीवन को रूपांतरित करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म साधना की शुरुआत करते हैं. उद्गीत प्राणायाम से आंखें बंद, मन सहज, मुख पे प्रसन्नता का भाव, लंबी गहरी सांस लेते हुए 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे. भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्.
प्रचोदया ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षयमामृता ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय शांति शांति शांति। हे रक्षक, प्राणधारक, दुखनाशक, आनंददायक, हम तुम्हारे दिव्य तेजोमय स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं और अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। हमारी बुद्धि में आपका ज्ञान स्थिर हो। आसनों और प्राणायाम का अभ्यास करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंतरिक जीवन की शुद्धि के लिए शौच माने शुचिता। योग करने से तन, मन और धन की शुद्धि होती है। लोगों को लगता है कि तन मन की शुद्धि तो समझ में आ रही है कि तन की शुद्धि योग से, मन की शुद्धि प्राणायाम से और आत्मा की शुद्धि ध्यान से, सत्संग से। लेकिन धन की शुद्धि ये कैसे संभव है? तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही हमारी बुद्धि तेज होती है, अति सूक्ष्म और समझ शक्ति तीव्र होती है, जिसके माध्यम से हम धन पाने के जो रास्ते हैं, कौन से मार्ग से धन पाना है, वो ब्रह्म मुहूर्त पे उठने से हमारे कर्म में भी गति आती है और भक्ति पूर्वक गति आती है। तो वो है सुचिता। लक्ष्मी की सुचिता श्री सूक्तम बोलने से नहीं। हरिओम हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो आवह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी अनपगामिनीम। हम कहते हैं कि हे प्रभु, श्री सूक्तम के माध्यम से हम जो बोलते हैं उसका भावार्थ है कि हे प्रभु, कि लक्ष्मी हमारे घर में आके स्थिर हो, ऐसी लक्ष्मी मुझे दे। और फिर कहावत है, मान्यता हमारी है कि लक्ष्मी तो चंचल है, आज है और कल नहीं रहेगी। तो ये मान्यता गलत है। लक्ष्मी कभी भी चंचल नहीं होती। लक्ष्मी माँ है, वो हमेशा हमारे घर में स्थिर रहने के लिए ही आती है। लेकिन लक्ष्मी आने से मनुष्य का मन चंचल हो जाता है, इसलिए वो लक्ष्मी को टिका नहीं पाता। तो हमारा मन स्थिर रहे, हमारा मन शुद्ध रहे, इसके लिए हमें सुचिता रखने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म क्रियाएं करनी चाहिए, ब्रह्म चर्चाएं करनी चाहिए। व्यर्थ विवाद में ब्रह्म का वाद करना चाहिए, ब्रह्म का विवाद नहीं। कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो है शौच। आंतरिक जीवन की शुद्धि के लिए दूसरा नियम है संतोष।
भगवत गीता में भगवान ने कहा, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। कि कैसा भक्त मुझे प्रिय है ऐसा कह रखा है, कहीं पे भी नहीं लिखा कि मुझे बड़ी चद्दर चढ़ाओ या मुझे ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, कहीं नहीं लिखा। ये कहा है कि मय्यव मन आदस्व मयि बुद्धि नियस्व, कि मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो। तो संतोष माने संतुष्ट सततम योगी, जो संतुष्ट हो। संतोषी नर सदा सुखी। लेकिन संतुष्ट होने के साथ साथ सततम योगी, सतत योगी, निरंतर योगी। योगी का मतलब है ये नहीं कि 1 दिन 2 दिन 5 दिन कर लिया, निरंतर निरंतर योगाभ्यास करते रहे। यतात्मा दृढ़ निश्चय, जो आत्मा दृढ़ निश्चयी है, जो निर्णय किया उसके ऊपर दृढ़ निश्चय से लगे रहे। मय्यर्पित मनोबुद्धि, जिसने मन और बुद्धि मुझे समर्पित किया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा प्रभु ने कह रखा है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म की साधना करते हुए हम संतुष्टता के साथ सततम सततम योग करते रहेंगे तो अवश्य हमारा समाधि तक का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। लेकिन वो चाह होनी चाहिए, समाधि तक जाने की चाह होगी तो राह मिल ही जाएगी। तो आइए यम नियम का पालन करते हुए, आसनों का अभ्यास करते हुए, सबसे पहले उद्गीत प्राणायाम करने के बाद हम अभी करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें प्रभु को प्रार्थना करेंगे कि हमें मन की शक्ति देना। लंबी गहरी सांस भरनी है, लंबी गहरी सांस को छोड़ना है। ध्यान मुद्रा में, जिसको वायु के, आंखें बंद, मन सहज, जैसे सांस आती है आने दो, जाती है जाने दो होगी। लेकिन विचार की शुद्धिकरण नहीं होगा तो विचारों से भी रोग होते हैं। सिर्फ आहार पद्धति बदलने से, कोई सिर्फ आहार पद्धति चल रहे हैं, कोई सिर्फ आसनों पे चल रहे हैं, कोई सिर्फ सत्संग पे चल रहे हैं, तो वो गलत है ऐसा नहीं कहा। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो मिथ्या है, झूठ नहीं है। कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन करने के लिए वो तीनों जरूरी है।